हेलो गाइस, konnichiwa। आज की वीडियो में मैं आपको पिताजी की स्टोरी बताऊंगा, जो हम चैप्टर 1 का पार्ट 3 आज आप कवर करेंगे। हो सके तो मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा कवर करूँ। अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, इंग्लिश में रीड करके, तो हम कल की तरह ही ऐसा करेंगे। जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है वहाँ तक मैं रीड करूँगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप ये है कि नाइन टेल्स का हमला हो चुका था। नाइन टेल्स को हमारे मिनाटोर को सिन्हा ने सील कर दिया था नारुतो के अंदर, और वहाँ पर उचिया लोग और फुकाक और जो अपना डांजो है वो हिरोजन को उचिया के खिलाफ बोल रहा था कि उचिया सब ने नाइन टेल्स को यहाँ पर बुलाया है वगैरह वगैरह। तो ये सब तक अब इसके आगे हम, और उसमें क्या होता है, ये जो उचिया क्लैन वाले हैं वो सब भी ये सोचा कि उनमें से कोई है जिसने उनके संग धोखा किया है। तो उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई होती है। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और साउंड के लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। मेरे घर के पास ही ये इलेक्शन की वजह से दिक्कत हो रही है। मैं दिल्ली में ही हूँ, इस टाइम मैं दिल्ली में हूँ, और जब मैं जहाँ हूँ उस टाइम इलेक्शन का कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 years old Itachi finally started her academy. Recent words that he was particularly overwhelmed about school itself. It was that school held for him a constant sense of achievements, the feeling that he was getting closer to his long-awaited goal of becoming a ninja. School could be completely different from the way he had trained in the secret by himself or with Shisui. These days at the school were part to ninjahood, and that made him independently happy. Now then, please introduce yourself and tell everyone your dream for the future. The older male teacher said, looking out at at his student. Their first class, the slightly nervous student looked at each other, confused. Itachi watched at the others, chatted, "Hey, what we are doing now? Still unfair with one another." And then he thought, as if we are not a part of the situation himself, that it was no wonder that we are confused. They could just get up in front of the unknowns peoples and split out their dream. Alright then, maybe I will be go by the student number, the teacher said loudly, rolling over the members from all corners of the room. Professor, understanding how his student felt, Professor not. Uchiha Itachi, the first character of his name was U, that was toward the beginning of the sound, beginning of the student numbers. He didn't worry about what was say. He had the same dream ever since he would remember. All he had to do was say it. All right, very well done. The classmate was absolute, and he is wrong there. Her dream was to be a great ninja like her father. Be a great ninja like her father. He imagined his own father. Fugaku was great, but Itachi feel like it is difficult for him to be lead the military force, the military police force, which didn't mean he was rejecting his father. He did want to excel like his father did, but he placed Itachi his eyes set on beyond that. He had called say his father was clearly standing there on light. Then next Uchiha, then Itachi Uchiha, the leader, the teacher looked at Itachi and smiled.
without doubt that there wasn't much point in the self introduction. If the teacher and their names first as even the whole time Itachi showed up and walked out to the front of the class. The other students at the same age as he was turned interest eyes on him, and he felt offended itching on his forehead. He patted the space between his eyebrows with fingers and then trusted his chest. Put, I am Uchiha Itachi. My dream is. He filtered. The teacher and students cocked their heads almost at his asked what was wrong. It is that I have a dream. It wasn't that he was having trouble choosing the dream he was going to talk about, and naturally his mouth stopped working because he was nervous or not anything of the sort. He wasn't sure if someone to actually talk about his dream in this place. The people before him had said it were all modest. I want to be like my father. I want to be great ninja and do lots of music. I want to be cute ninja. This was the short dream the teacher and his classmate expected. Itachi's dream was different. My dream is all right. Go ahead and say it. The teacher agreed him. It didn't matter what they think. I want to be the greatest ninja ever created. Like I can erase all fighting from this world. He heard someone loud in the corner classroom, and then immediately after that come to bring political hammering of happiness. Well done, the teacher said, and Peter Titaji said, our president was just too much view. No one believed him. They all thought it was a dream that could never come true. This is a dream that comes from a young child. Ignorance of the world as was they all thought, so they laughed at him. They clapped mentally. Only one of them, only Tachi, was serious, and his teacher and classmate would learn just how serious later. तो अब यहाँ पर होता क्या है, हमें बताया जाता है इताची जो है वो 6 साल का हो चुका है फाइनली, और इताची ने अपने अकेडमी भी ज्वाइन कर लिया और वो अकेडमी में जाता है. इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पर, वो अपने दोस्तों को अपने क्लासमेट से देखता है, सब अपना इंट्रोडक्शन करते हैं. इताची की बारी आती है, इताची का भी इंट्रोडक्शन होता है, और सबके दिमाग में ये होता है कि उसका ड्रीम होगा कि वो अपने पापा से भी ज़्यादा ताकतवर बने, यानी कि फुकाकू उचिहा से भी. उसके दिमाग में भी पहले यही चल रहा था कि मेरा ड्रीम मेरे पापा से ज़्यादा ताकतवर निंजा बनना है, ग्रेट क्यूट निंजा, अच्छा निंजा. और वो फिर उसके बाद उसकी बारी आती है, उसका नाम बोला जाता है इताची उचिहा. फर्स्ट नंबर पे उसका नाम होता है. उसका टीचर बोलता है कि आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो इताची को बुलाया जाता है, और बच्चे उसके वो नाम से भी समझ जाते हैं कि वो भी उसका भी सेम ही ड्रीम होगा जो हर उचिहा का होता है, लाइक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना. जैसे उसका लोगों को लगता है कि वो बोलेगा कि मैं अपने पापा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा और मैं ये कब करूँगा वगैरह वगैरह. तो लेकिन फिर उसके बाद वो बोलता है मेरा ड्रीम है, फिर वो रुक जाता है और उसके सर पे हाथ रखता है. वो ऐसे मतलब सर पे हाथ रख के मिलता है जैसे छोटे बच्चों को करता है कि बोलो, ऐसा करके मतलब उसको सहारा देता है कि तुम बोल सकते हो. फिर वो सोचता है मेरे पास तो कोई ड्रीम ही नहीं है, मेरे पास ड्रीम. वो बोलता है मेरे को ड्रीम चुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब दिक्कत आ रही है, और मैं किससे बात करूं. और फिर उसके बाद और उसका जो मुंह है वो अपने आप ही बंद हो जाता है, अपने आप ही नेचुरली. स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ही वॉज नर्वस. क्योंकि वो नर्वस होता है तो उसका माउथ कुछ बोल नहीं पाता आगे. आई एम इताची उचिहा, माय ड्रीम इज लाइक दिस. तो उसका मुँह ऐसे बीच में बंद हो जाता है क्योंकि वो बहुत नर्वस होता है इसका अच्छा हुआ. और फिर उसके बाद
हमें दिखाया जाता है कि लोग क्या सोच रहे होते हैं। तो your dreams the people before him said it we are all also modest। तो जो पहले लोगों ने ड्रीम शेयर करे थे वो भी इसकी तरह ही थे, शांत मतलब ऐसे। तो उनके जो ड्रीम थे, आई वांट टू बी लाइक माई फादर, आई वांट टू बी ग्रेट निंजा, डू लॉट्स ऑफ मिशन, आई वांट टू बी क्यूट निंजा, दिस वाज अ शॉर्ट ड्रीम ऑफ द टीचर एंड हिज क्लासमेट स्पेल। तो यही सब, और उसके क्लासमेट है और टीचर हैं उसकी कक्षा के छात्र और उसके शिष्य, गुरु शिष्य या तुम जो भी कहो, शिक्षक वगैरह, वो भी यही सोच रहे थे कि यही होगा उसका भी ड्रीम, कि हर जगह में ऑलमोस्ट यही होता है। बट उसका ड्रीम इन सबसे अलग था। वो बोलता है माय ड्रीम, मेरा सपना। वो उसके सर बोलते हैं, उसके सर पर हाथ रखे बोलो बोलो। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सोचते हैं लोग। और फिर उसके बाद वो बोलता है आई वांट टू बी अ ग्रेट निंजा, यू आर द ग्रेट निंजा दैट कैन इरेज ऑल फाइटिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो वो बोलता है, इसका मतलब है वो बोलता है कि मैं एक ऐसा निंजा, मैं बहुत तगड़ा अच्छा निंजा बनूंगा जो इस दुनिया में से सभी तरह की फाइटिंग यानी कि लड़ाइयों को मिटा देगा। इरेज का मतलब मिटाना, फाइटिंग मतलब लड़ाई या युद्ध कहो तुम जो भी कहो। और फिर उसके बाद सब यही सोच होते हैं कि ये कैसा होता है। और कहीं कॉर्नर में से एक किसी के हंसने की आवाज़ आती है। हिताची सोचता तो है कौन है, देखने की कोशिश करता है, पटना दिखता। उसका सर बोलता है बहुत अच्छे, और सबके सब ऐसे ताली बजाते हैं जैसे कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको यही लगता है। और पर हिताची उस टाइम भी सीरियस होता है इस चीज़ को लेके, और लोग उसके टीचर और उसके क्लासमेट, उसका शिष्य और उसके कक्षा के बच्चे सबके सब बाद में सीरियस होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हो his classmates sat in a row, dumbstruck, even the teacher, a little face of taking notes, forgot to call on the next student in his disbelief. In her row, dumbstruck, even the teacher, a little face students. The class was basically a test to see how many of 20 human fingers set up all the school year. A student called it with Kunai in short period of time. Each student took a turn individually. His classmates before him had all run around the school yard at top speed. Managing to complete the task in over the 5 minutes, painting all the world. Before the class started, they shown the location of the human fingers. All of them were annoying place like the top of the tallest tree or behind a hall window on the third floor. So everyone raced around and managed to do it an average of 5 minutes. Itachi had done it 30 seconds. All his kunai hit the fingers precisely and head or chest. It's almost exactly same place each time. The slight difference we are only due to difference how much the figure was actually sport. His kunai had all hit with the almost flawless accuracy. We know where the fingers are, and all of them can be reached from the sky. Schoolyard, the student before the touchy finished the test, limited by this factor, study of them and learn to craft and in response we are incredible from the starting point. Moving the center of the schoolyard, Itachi drew a line on his mind and split the range in 4 and then further out repeatedly up the areas of connecting the target before he categorized these as once he can reach from the starting point and one of the world need to move to hit their 12 the requirement him to move. He then started the target and
quiet movement and calculate the tragedy that all allowed him to go around with the most facility. As the teacher gave the start signal, Itachi launched the eight kunai and he held in both hands at eight human fingers simultaneously that didn't even take 2 seconds. From there he started running, racing on the road, and he pitched his head and made a swift tour of the yard. 30 seconds. Itachi feel like almost took a long so he could have done it faster. Well done. Alright, next up, teacher said, sweat rolling down his forehead. Without responding, Itachi returned to his place among excited students. His performance has been so incredible that one could say worked directly to him. They congratulated him for a distance and whispered to each other. Unaware of his rejection, Itachi reflected on the result of the trial he had just completed before his eyes. The next student was racing frantically around the yard. A could save another 5 seconds of he found a place where he would collect the tragedy of his run and felt a smell of immediately Uchiha Itachi, the teacher called it, and Itachi stopped up and protected the front of classroom. Here you are, you did very well. A large cricket was drawn around 400. The at the top of page he was ended. You are only one who get perfect score on the test. Hearing this, his classmate gifted him surprise. Itachi over slightly to the teacher and then ran directly to his seat. 3 months since he started to school and we still had not had anything resembling a conversation which any of his classmates. They naturally stared in the face of his outstanding grades record in each and every one of their classes. All of them had ever so strongly spoken to him once, but Itachi response were always so consonants and different that no one of them wanted to try to speak to him again. He was not going to school to make friends, so he was fine with that. The larger defection for Itachi was now he felt how he felt like it was never out, no matter how excellent his grades were. The limit for grades was 100 percentage. It was impossible to get anything from then that, but he felt like this was untraumatic. Can I really learn the true nature of the ninja in a place like this? School grades and actual ability were not the same thing. That's where the field he felt, which was why he was always distant. Itachi was surely connected about the fact that being number one at the school, not directly connected. His own dream began a great ninja. Make sure you show the test your parents, his teacher in a trail, and Itachi carefully folded in a half page of it the 100 on it. तो अब यहाँ क्या होता है मैं यहीं तक डिस्कस करूँगा क्योंकि अभी काफ़ी लंबी है ये पोएम. इसके मैं एक और पार्ट डालूँगा जो आपको शायद से कल या हो सके आज रात को देखने को मिल जाए. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है इताची की ट्रेनिंग स्टार्ट, यानी कि अब उनका एक टेस्ट होता है. तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो उनका टीचर है वो है बहुत ज़्यादा
ताची जो इनका टीचर है वो ताची को बुलाने के बाद भूल ही जाता है कि उससे किसी और को भी बुलाता है इंट्रोडक्शन के लिए, आगे वाले बच्चों को उसने बुलाया नहीं। तो इसी वजह से थोड़ा बच्चे सब बोलते हैं। फिर उसके बाद उन्हें टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि तुम्हारा एक टेस्ट है, तुम्हें ह्यूमन फिंगर, मैं हिंदी में ना बोलूँगा वरना कुछ वीडियो उड़ जाएगी मेरी। तो इंसानों ठीक है, इंसानों उंगलियाँ, अब समझ जाओ तुम समझने वाले। तो उन्हें कलेक्ट करना है तुम्हें। अब ये नकली की है, असली की नहीं थी इसमें, ये हमें पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि बच्चों को भी इसमें बताया गया था कि जो वो हैं वो असली नहीं है, नकली हैं। तो उन्हें इन्हें कलेक्ट करना था, तो बच्चों को भेजा गया धीरे धीरे करके। सब बच्चों की बारी आ गई, लास्ट में ताची को भेजा गया। तो सब बच्चों ने भागते दौड़ते सारी कलेक्ट कर ली। तो जो उंगलियाँ थी वो अलग अलग जगह रखी गई थी, जैसे कि पेड़ के ऊपर, पत्थर पे किसी ऊँचे, तो तुम्हें वहाँ से कलेक्ट करनी थी। ऐसे ऐसे डिफरेंट जगह पे वो रखी गई थी ऊँची, ताकि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो और वो कम, उन्हें समय भी ज़्यादा लगे, ताकि टेस्ट करने के, और वो टेस्ट करने का मतलब ये था ताकि वो उनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ, कि उनके अंदर कितनी स्पीड है, कितना वो अपना दिमाग अच्छा चलाते हैं, ये सब देख सके। तो वही सब उन्हें देखना था, तो इसलिए वो रखा जाता है। तो सबका टेस्ट हुआ, सब ने टेस्ट में 5 मिनट लिए। कुछ बच्चों ने थोड़ा कम समय लिया था, पर ज़्यादातर बच्चों ने 5 मिनट लगाए सारी उंगलियों को इकट्ठा करने में। पर जब ताची का नाम आया, ताची गया, उसने अपना आधो हाथ में, मतलब 8 उंगलियाँ रखी गई थी वहाँ पर, उसने 8 कोनाई पकड़े थे, जैसे कि 1 2 3 और 1 4, ऐसे ऐसे करके उसने 4 और 4 दूसरे हाथ में ऐसे और पकड़ के उसने रखे हुए थे। जैसे ही टीचर ने उसको बोला स्टार्ट, वो जाके उसने सीधा वो कोनाई इधर उधर, उसने पहले ही जब टीचर ने उसका नाम बुलाया था उसने कोनाई पकड़े हुए थे, तो उसने उसी टाइम अपने दिमाग में एक लाइन बना ली थी, जो लाइन थी कि कौन कौन सी जगह क्या क्या है, उसने पहले से ही महसूस कर लिया, क्योंकि उसने इतने सारे बच्चों को देखा था पकड़ते हुए, तो उसको पता लग गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। उसने ये सब सोच लिया, क्योंकि उससे पहले जो बच्चा गया था चाची से पहले, उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें बताया गया है, वो जीत सकता था इताची से। उसकी स्ट्रैटेजी लेकिन मिस हो गई, क्यों? टाइमिंग की वजह से। उसकी स्ट्रैटेजी थी, उसने पहले ये सब भाप लिया था कि कहाँ क्या हो सकता है, उसने उन सबको उठा लिया, पर उसको टाइमिंग में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने उठाया, उसे वहाँ से उसे ऊपर चढ़ना पड़ा, फिर ऊपर से उठाना पड़ा और ऐसे करके करना पड़ा। वहीं ताची ने इस चीज़ को समझ लिया था, उसने अपने हाथ में कुनाई रखे और उसने भी ऐसे ही सोच लिया, उससे पता लगा कौन सी चीज़ कहाँ है। टीचर ने उसको बोला स्टार्ट, उसने सीधा कुनाई टारगेट पे फेंके और सारे के सारी चीज़ें नीचे आ गई, सारी फिंगर मतलब ऑटो किया, जिससे वो उन्हें उठा के उसने फटाफट भागा और फटाफट भागते भागते उसने सारी उठाई उनकी डायरेक्शन पे से। उसे पता थी कौन सी कहाँ है कुनाई की वजह से, तो उसने सबको उठाया फटाफट और फिर उसने उस सबको फिनिश कर दिया और उसको पूरे 30 सेकंड लगे। और तुम सोच रहे हो 6 साल का बच्चा जो कितनी जल्दी जल्दी सब कर रहा है, तो तुम कैसे नहीं रख सकते, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो बच्चों को, तो बाकी क्लासमेट को, उसके जो भी बाकी कक्षा के बाकी विद्यार्थी थे कक्षा के, उन्हें नहीं पता था ये सब ज़्यादा। उन्हें लगा कि ताची ने कंप्लीट कर लिया, बस इतना पता था, उन्हें टाइमिंग का कुछ नहीं पता था। तो फिर उसके बाद क्लास सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब टेस्ट ख़त्म हो गया। सब बच्चे अपने अपने खुद ही खुशी में गए कि हमने टेस्ट पार कर लिया, घर पार कर लिया, और खुशी से सब के सब एक जगह गए, वहाँ पर जाके थोड़ा मज़े करने लगे। वही ताची वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तो हमें फिर बताया जाता है कि जो इताची है उसके साथ क्या होता है। इताची फिर क्लास में बुलाया जाता है इताची को, और इताची को बोला जाता है कि नाम बुलाया जाता है इताची का, उसका टीचर उसका नाम बुलाता है, उसे बोलता है कि तुमने सबसे अच्छा किया है, तुम्हें पूरे 100 नंबर मिले हैं, 100 में से 100। देख लो 6 साल का बच्चा, उतनी अच्छी चीज़ है। तो और टीचर उसके हाथ में वो पेज पकड़ा देता है टेस्ट का, और सब बच्चे शौक में पड़े होते हैं कि कैसे। तो टीचर फिर बताता है कि तुमने सबसे जल्दी पार किया था, उस टेस्ट को ख़त्म किया था। और सब बच्चे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि क्यों, सब मतलब ऐसा होता है कि इसने कैसे कर लिया, क्यों हो सकता है, ये तो गलत है, वो उसके बहुत
मतलब जलस कर रहे होते हैं उससे, बहुत जल रहे होते हैं कि तो ये क्या हो गया। और तो इताची, लेकिन इताची के लिए वो सब कुछ ऐसे ही होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इताची कभी स्कूल में एकेडमी जो आया था वो इसलिए नहीं आया था कि वो यहाँ पर आके फ्रेंड्स बनाए ये सब करे। वो इसलिए आया था ताकि वो ट्रेन हो सके। फिर वो सोचता है कि मैं काय का ट्रेन हो रहा हूँ, कि तुम खुद देख लो कि इताची के लिए बच्चों वाले खेलता है। वो यही सोचता है कि ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से, मेरी सब चीज़ों पे मैं आसानी से सब कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसका टीचर उससे बोलता है कि ये अपने ये मम्मी पापा को ज़रूर दिखाना। और उसके बाद वो उसको फोल्ड करता है और यहाँ पर फिर वो उसे अपने पास रख लेता है। वो आधा मतलब आधा ऐसे करके यूँ करके और रख लेता है। तो इसी तरह से ये ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको बाद में पूरी न हो सके तो इसे बाकी आगे तक शाम को या रात को डाल दूँगा, या हो सके कल डालूँगा मैं की वीडियो। अगर आपको ऐसी और भी कोई चीज़ वीडियो चाहिए जो कि आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ कुछ और, तो आप मुझे कमेंट में उस चीज़ के बारे में बोल सकते हो। कोई पोएम है इंग्लिश की, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं 4 लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज़, संस्कृत, और थोड़ा थोड़ा मेरे को उर्दू और अरबी भी आती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूँ। तो अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही इंग्लिश में या जापानीज़ में या हिंदी में और संस्कृत में, तो तुम मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हारी कमेंट ज़रूर रीड कर पढ़ूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ कल, या हो सके अगली वीडियो में ही मिलूँगा, पर पता नहीं कब मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो नीचे कमेंट में। कमेंट सबके लिए खुली हैं, बस ध्यान रखना कि कमेंट में आप कुछ गलत ना हो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया स्टोरी में, तुम मुझे तब भी कमेंट कर सकते हो। कुछ भी कमेंट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखना और खुश रहो, मेहनत करो, सब कुछ ठीक होगा। यही सोच के आगे बढ़ते रहना। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।